Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So we will start exercise number 3.4 and that is totally based on elimination method. Okay, so first we need to understand what is elimination method, okay, and what are the steps we need to follow. Okay, so first we have two linear equations, right? So first we need to make coefficients of x अदरवाइज y इक्वल, राइट. सो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट जो है उसको इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4 एलिमिनेशन मेथड. So we have two equations, x plus y equals to 5, number 1, x plus y equals to 5, and second equation is x minus 3y equals to 4. Okay, see, अगर y के कोफिशिएंट्स आप सेम करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -3, राइट. सो -3 है या तो +3, वो आपको नहीं दिखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है. दैट मींस 3 एंड 1 का एलसीएम हो जाएगा 3. सो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम करना है. So we need to multiply equation 1, 5, 3, right? So 3 into x dx, 3 into y 3y equals to 3 5 just 15. After that क्या करना है, दोनों का subtraction, right? But second method x के कोफिशिएंट. So अगर आप x के कोफिशिएंट करते हो so x में भी सेम वे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट है 1. अगर दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, ओके, सो विदाउट मल्टीप्लाई एनी नंबर डायरेक्टली यू हैव टू एलिमिनेट बोथ द इक्वेशन, राइट. सो बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 and 2, बाय एलिमिनेटिंग equation 1 and 2, so first equation is x plus y equals to 5 and second is x minus 3y equals to 4. okay, sign change करनी है अभी, माइनस प्लस माइनस. नाउ जैसा आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते हो सिमिलर वे x minus x कट y plus 3y that is 4y equals to 5 minus 4 is 1. okay, yes, so therefore y equals to 1 by 4. x plus y, x minus 3y, let me check. x plus y equals to 5 and x minus 3y equals to 4. okay, yes, so x plus y equals to 5 and x minus 3y equals to 4. तो x minus x हो जाएगा कट, यानी वो तो 0 प्लस y प्लस 3y हो जाएगा प्लस 4y equals to 5 minus 4. 5 minus 4 is 1. So y equals to 1 by 4. Now y equals to 1 by 4. सेकंड स्टेप जो है वो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हो कि पर्टिकुलर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अनदर इक्वेशन दैट मींस यहां पे ऐसा फिक्स नहीं है, आप फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, राइट. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 x plus y equals to 5. So x
equals to 5, therefore x equals to 5 minus 1 by 4. So LCM हो जाएगा 4. So 4 5s are 20. 20 minus 1 by 4 equals to 19 by 4. Okay. So value of x is 19 by 4 and y is 1 by 4. Okay. Now number 2, 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. 3x minus plus 4y equals to 10. Equation 1 and 2x minus 2y equals to 2. Equation number. Now, so first equation coefficient of x is 3 and second equation coefficient of x is 2. So LCM of 3 and 2 is 6, right? So दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 6 होना चाहिए. So multiply equation 1 from 2 and equation 2 from 3, right? So multiply equation 1 from 2 and equation 2 from 3 and eliminate them. Okay, and then eliminate them. So we get 2 into 3x, that is 6x, plus 2 into 4y, 8y, equals to 2 into 10, that is 20. Now 3 into 2x, 6x, minus 3 into 2y, 6y, equals to 3 into 2, 6, minus plus minus. Now 6x minus 6x cut, 8y plus 6y, that is 14y, equals to 20 minus 6, 14, right? Therefore y equals to 14 upon 14 and therefore y equals to 1. Next same way y की वैल्यू को भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? So similarly थर्ड एंड फोर्थ वो भी हो जाएगा होमवर्क में, ठीक है? फोर्थ में देखो डिनोमिनेटर में 2 बाई 3 है, तो जैसा आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एंड 6, नीचे डिनोमिनेटर्स में जो 2 एंड 3 था उसका हमने क्या किया था? We need to take LCM. So LCM of 3 and 2 is 6. Okay, so दोनों के नीचे 6 सेट करना है आपको. After that डिनोमिनेटर में जो 6 है वो राइट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? So further you can do yourself, right? So your today's homework is complete class work. And question number 1, 3, 4. Okay, so फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट करके थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो फर्स्ट वन फ्रैक्शन फॉर्म जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था. ओके, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो y, न्यूमरेटर को x सपोज करना है, ठीक है? इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट मींस x जो आपका न्यूमरेटर है उसमें प्लस 1 हो जाएगा, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर इज y, उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना है, दैट मींस डिनोमिनेटर में हो जाएगा y minus 1 एंड अवर फ्रैक्शन बिकम्स, yes, fraction reduces to 1. Reduces to 1, that means what? आपका जो fraction है वो 1 आएगा. 1 that means उसको आप 1 by 1 बोल सकते हो. डायरेक्टली y यानी आपका जो y minus 1 है उसको डायरेक्टली आप राइट ले जाओगे और यहाँ
1. So x plus 1 upon y plus 1 equals to 1 मिल जाएगा आपको। 1 के साथ y minus 1 यानी x plus 1 equals to y minus 1, so आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में फ्रैक्शन है आपका 1/2, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सेकंड अगेन एज वाला सम है, ठीक है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, ठीक है, and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो Nuri and Sonu है, Nuri की प्रेजेंट एज x सपोज कर लो और सोनू जो है उसकी प्रेजेंट एज y सपोज कर लो। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मेक इक्वेशंस, राइट, एंड आफ्टर दैट सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। So see you next lecture. Till then, goodbye. Take care.